بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں ہمارے رب کے لیے ہیں۔ وہ پاک پروردگار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرے معزز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے سلطان، بر صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک، جس نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی پہلی بنیاد رکھی۔ سلطان قطب الدین ایبک بر صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ، جو پہلے غلام تھا، غلام سے تخت نشین ہونے والا بادشاہ۔ ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا اور اسے تاجر نے فوراً خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب، میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ میں غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ اور اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ قاضی فخر الدین، جو امام اعظم کے خاندان سے تھے، قاضی فخر الدین نے اپنے بیٹوں کے ساتھ قطب الدین ایبک کو تعلیم دلائی اور ان کی تربیت کا پورا خیال رکھا۔ قاضی فخر الدین نے قطب الدین ایبک کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تیر اندازی اور شاہ سواری بھی سکھائی۔ قطب الدین ایبک ترکی نسل تھا۔ ایبک ترکی زبان کا لفظ ہے جس سے جسمانی کمزوری مراد ہے کہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قطب الدین ایبک کی شکل و صورت اور جسم بہودھا تھا، اس لیے اسے ایبک کہا جاتا تھا۔ اکثر تاریخ دان ایبک کا لفظی مطلب چنگلی، چھوٹی انگلی بتاتے ہیں۔ اسے کمزور چنگلی والا شخص مراد لیتے ہیں۔ ایبک کے ہاتھ کی ایک چنگلی مفلوج یا شل تھی۔ قطب الدین ایبک نسلاً ترک تھے۔ ایک سوداگر کے ہاتھوں خریدے گئے اور نشاپور کے قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ قاضی صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے قطب الدین کو ایک اور سوداگر کے پاس بیچ دیا، جس نے اسے غزنی میں لا کر محمد غوری کے دربار میں پیش کیا۔ حضور، میرے اس غلام کو گھوڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کے لڑکے سے پوچھا، تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ہی ادب سے جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ اسے اپنا مطیع بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا، لڑکے، تم اس گھوڑے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے سمو کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا، جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرما بردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو مطیع بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا، جس کا نام قطب الدین تھا۔ سلطان نے اسے چست اور ذہین پا کر خرید لیا اور اسے شاہی استبل خانے کا داروغہ مقرر کر دیا۔ قطب الدین ایبک انتہائی شجاعت اور بہادر انسان تھا۔ قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری، ہمت اور بہادری سے محمد غوری کو بہت متاثر کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا اسے غلام رکھنے اور پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کی بیٹوں کی طرح تربیت کی تھی۔ ان کی قابلیت پر اعتماد تھا۔ شہاب الدین بہت سخی دل تھا
मगर इसको एक रोज़ जब पता चला कि कुतुबुद्दीन इससे भी बड़ा हातम ताई है, इसके पास जो कुछ होता है, रात में सोने से पहले महल में जितने मुलाजिम होते हैं सब कुछ उनमें बांटकर फिर सोता है, तो ये सुनकर बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन बहुत मुतासिर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक रफ्ता रफ्ता अपनी सलाहियतों के बलबूते पर सुल्तान के मंजूर नज़र ठहरे। सन 1192 में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फ़तह कर लिया। कुतुबुद्दीन ने अपनी वफ़ादारी, हिम्मत और बहादुरी से मोहम्मद गौरी को बहुत मुतासिर किया। मोहम्मद गौरी ने उसे अपने तमाम दीगर अफसरों पर फजीलत और तरजीह देते हुए हिंदुस्तान के मफ्तूहा इलाक़ों का नायब सल्तनत गवर्नर बना दिया। चुनाचे कुतुबुद्दीन यहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए। अगले बरस सुल्तान ने कनूज पर चढ़ाई की। इस जंग में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी वफ़ादारी और सिपाहगिरी का ऐसा सबूत दिया कि सुल्तान को उन्हें फ़र्जंद बनाते ही बनी। फरमान फ़र्जंदी और सफ़ेद हाथी अता हुआ। कुतुबुद्दीन का सितारा इकबाल चमकता चला गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना फ़र्जंद मुंतखब कर लिया। इनकी फ़ौजें गुजरात, राजपूताना, गंगा जमुना के दुआबा, बहार और बंगाल में फ़तह व नुसरत का परचम लहराती हुई दाखिल हुई। शहाबुद्दीन गज़नी का बादशाह था। सेंटर एशिया से हिंदुस्तान तक इनकी हुकूमत फैली हुई थी। दिल्ली और अजमेर जब फ़तह हुए तो दोनों शहर कुतुबुद्दीन को सौंप दिए। कुतुबुद्दीन दिलेर था, बहादुर था। इसकी सल्तनत देखते ही देखते यूँ हिंदुस्तान में फैल गई, मगर वो शहाबुद्दीन सुल्तान का ताबेदार हमेशा रहा। सुल्तान मोहम्मद गौरी की वफ़ात पर इसकी सल्तनत का बरकरार रहना नहायत ही मुश्किल नज़र आता था, क्योंकि मुफ्तहा इलाक़ों को अभी पूरी तरह इस्तेहकाम हासिल नहीं हुआ था कि मोहम्मद गौरी की वस्त एशियाई शिकस्त और उसकी मौत के हादसात से हिंदुओं को सर उभरने का मौका मिल गया, जिसके बाइस सूबाई गवर्नरों की खुदसरी के अलावा कालंजर, बदायूं, फ़ख्र आबाद, लखनऊती वग़ैरह में हिंदुओं की तरफ से बगावत के आसार नुमायाँ होने लगे थे। उन्हीं हालात में सल्तनत को तबाही से बचाने के लिए अहले लाहौर की दावत पर दिल्ली से लाहौर आया। लाहौर का शाही किला, जो मिट्टी और पत्थर का एक छोटा सा किला था, इसमें एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, जहां सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान की अलामती चाबियां कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और हिंदुस्तान के खुद मुख्तार बादशाह की हैसियत इख्तियार करके वहाँ पर रस्म ताजपोशी अदा की गई और मुमलिकत पाक व हिंद की ज़माम हुकूमत अपने हाथ में ले ली। मोहम्मद गौरी के जानशीन भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने भी इसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की तख्त नशीनी के वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के चंद एक और ग़ुलाम भी मौजूद थे। रब की शान देखें, तारीख़ ने एक बेआसरा ग़ुलाम को बादशाह बनते देखा और अक़ल दूर खड़ी सर खुजाती रह गई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने जून 1206 को लाहौर में अपनी तख्त नशीनी का ऐलान किया। अमूर सल्तनत पर तवज्जो दी। बेशतर वक्त नवाज़िदा इस्लामी सल्तनत में अमन व अमान कायम रखने में गुजारा। आलिमों की हद दर्जा कदरदान थे। फ़याज़ी और दादू देश में भी नाम बनाया और तारीख़ में लख बख्श के नाम से मशहूर हुए। तारीख़ में लिखा गया है कि लाहौर में और हिंदुस्तान में उनको लख बख्श के नाम से इसलिए पुकारा जाता था कि वो नहायत ही सखी रहम दिल बादशाह थे, जो किसी को भी अपने दर से मायूस नहीं लौटाते थे।
सुल्तान कुतुबुद्दीन की एक ये खूबी थी कि वो जब भी जंग से वापसी लौटते और वहाँ का माल गनीमत जैसे भी जमा होता वो सब रिया में तकसीम कर देते, इसलिए वहाँ की रिया उनको लाख बख्श के नाम से पुकारा करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की तख्त नशीनी के वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के चंद एक और ग़ुलाम भी मौजूद थे, जिनमें ताजुद्दीन यल्दौज़ अफ़गानिस्तान सिंध के दरमियानी इलाके का हाकिम था और नासिरुद्दीन क़बाचा सिंध पर हुकूमत करता था। सुल्तान के शहीद होते ही उन्होंने भी अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। ताजुद्दीन यल्दौज़ ने गज़नी पर हुकूमत करने की दिल्ली की हुकूमत पर कब्ज़ा करने के लिए सूबा पंजाब को गज़नी की सल्तनत में शामिल करना चाहा। इसके बरक्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने पंजाब को सल्तनत दिल्ली का सूबा होने की हैसियत से अपने कब्ज़े में रखने पर इसरार किया। दोनों में जंग हुई। अव्वल ताजुद्दीन यल्दौज़ ने लाहौर फतह कर लिया, लेकिन इसकी ये कामयाबी देर पा ना साबित हुई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे जल्द ही पंजाब से निकाल दिया और फिर बाद में गज़नी पर भी चढ़ाई करके ताजुद्दीन यल्दौज़ को वहाँ से मार भगाया। ताजुद्दीन यल्दौज़ के ख़तरे के पेश नज़र सुल्तान के लिए दिल्ली के बजाय लाहौर रहना ज़्यादा मुफीद था। यल्दौज़ की दुश्मनी के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को नासिरुद्दीन क़बाचा और अली मर्दान की तरफ से भी ख़तरा था। मसलहत के गर्ज़ से उसने एक तरफ अगर यल्दौज़ की बेटी के साथ शादी करके अपना रिश्ता कायम किया और दूसरी तरफ इसने अपनी एक बेटी की शादी नासिरुद्दीन क़बाचा से कर दी। अपनी पहली बेटी के मरने पर उसने अपनी एक और बेटी भी क़बाचा को ब्याह दी। इन ताल्लुक़दारियों के साथ साथ अली मर्दान से भी दोस्ताना ताल्लुक़ात इस्तवार किए। इस हिकमत अमली का नतीजा बहुत खुशगवार निकला। मुल्क में अमन व अमान बहाल हो गया और हिंदुस्तान का ताल्लुक़ गज़नी और गौर से मुंतक़ा होकर यहाँ एक जुदागाना आज़ाद खुद मुख्तियार इस्लामी सल्तनत कायम हो गई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़ानदान ग़ुलामा की बुनियाद रखी। इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह शमशुद्दीन अल्तमश, रुकनुद्दीन, रज़िया बेग, ग़ियासुद्दीन बुलबन और कई नामूर बादशाह एक के बाद दीगरे तख्त नशीन हुए। इन्होंने कुल 86 बरस 1206 से 1290 तक हुकूमत की। इस ख़ानदान को ख़ानदान ग़ुलामा कहने की वजह ये बताई जाती है कि उस ख़ानदान में जितने बादशाह हुए वो ग़ुलाम थे या ग़ुलामों की नस्ल से थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में इस्लामी मुमलिकत का पहला ताजदार था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने फ़तह दिल्ली के बाद अपनी वफ़ात तक कुल 20 साल तक हिंदुस्तान में हुकूमत की, लेकिन इब्तदाई सालों में नायब सल्तनत की हैसियत से था। आखिरी 4 साल खुद मुख्तार और मुस्तकिल शहंशाह रहा। इसके बड़े बड़े कारनामे हैं, जिनमें से उसने राजपूतों और हिंदुओं को बार बार शिकस्त दी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक साफ दिल, मखीर, आदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में सल्तनत खुशहाल और अमन अमान का दौर था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्म व अदब और शेर व शायरी से भी ख़ास लगाव था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने फ़न तामीर की तरफ भी बहुत तवज्जो दी। उनकी मशहूर तामीरात में मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम दिल्ली, कुतुब मीनार और अराहित दिन का झोपड़ा हासिल तौर पर काबिल ज़िक्र है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बतौर हुक्मरान अरसा 4 साल 1206 से लेकर 1210 से ज़्यादा हुकूमत करने की मोहलत नसीब ना हुई। नवंबर सन 1210 में लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर 60 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और बैरून लोहारी दरवाज़े नए अनारकली बाज़ार के एक कूचे ऐबक रोड में आसूदा खाक हुए। लाहौर में इनका मकबरा तामीर हुआ, जो वक्त और हालात के हाथों बर्बाद होता रहा, यहाँ तक कि
مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک سکھ کی ملکیت میں رہا۔ انگریزوں کے دور میں بھی مقبرے کی خستہ حالی نہ گئی۔ قیام پاکستان کے 15 برس بعد صدر ایوب خان کے دور میں محترم حفیظ جالندھری نے صدر مملکت کو مشورہ دیا کہ مجاہد اسلام کے مقبرے کی مرمت اور تزئین نو کا بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ صدر پاکستان حکم پر مقبرے کو شہنشاہ کے شایان شان پروقار شکل دی گئی۔ پاکستان کے محکمہ مردم شماری نے انہیں پاکستان کی ریاح میں شامل کر لیا ہے۔ رب کی شان دیکھیں، تاریخ نے ایک بے آسرا غلام کو بادشاہ بنتے دیکھا اور عقل دور کھڑی سر کھجاتی رہ گئی۔